ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بلوچستان پر غالباً حد سے بعد بڑی طویل پریس کانفرنس کی، جس میں انہی کے دعوے کے مطابق 4 دن میں 3 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 54 دہشت گرد کہتے ہیں ہلاک ہوئے، آج بھی کوئی واقعہ سامنے آیا۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ فوج کے ترجمان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، کیونکہ اگر خبر نہیں دی جاتی تو پھر افواہیں آتی ہیں۔ ہمیں ہماری بیورو چیف بشریٰ قمر نے جوائن کیا ہے، اور بابر یوسفزئی جو خصوصی ہیں، دونوں بلوچستان پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ کیا پہلے ہم بابر یوسفزئی کے پاس جائیں؟ جی بابر، میں نے کہا ایک اچھی بات یہ ہے کہ فوج کے ترجمان سامنے آئے، بلکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں علم کہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے۔ وزیر ان کے ترجمان جو ہیں ہمارے چیف منسٹر کے، یا آپ ماشاءاللہ ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں، خبر دیتے ہیں، اور آپ جب آتے ہیں تو اس سے میں نے کہا نا کہ تعداد میں بھی، واقع میں بھی، سانے میں بھی، بلکہ میں آپ آئیں گے تو میں چاہ رہا تھا کہ پہلے تو بشریٰ قمر کے بعد بھی جاتا کہ جو ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس جنہوں نے اٹینڈ کری اس سے ہمیں تفصیل سامنے نہیں آئی۔ لیکن آج جو واقعہ میرے خیال میں سب سے بڑا واقعہ ہے، یہ جو رپورٹ کر رہے تھے جس میں اتنے بڑی تعداد جوان شہید ہوئے۔ لیکن بابر اپنی جگہ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جو خاص طور پہ جیسے زیارت کا علاقہ ہے، تو ایک طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بی ایل اے ہوں یا دہشت گرد پہنچتے ہیں۔ راستے میں مجھے نہیں علم کہ یقیناً سہولت کار ہوں گے، سیکورٹی چوکیاں بھی ہوں گی، عام لوگوں کو روکا جاتا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے وہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، سیکورٹی لیبس کا بھی معاملہ لگتا ہے بابر یوسفزئی۔ سب سے پہلے تو بریلوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بلوچستان پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور گائے بگائے آپ بلوچستان کو اپنے پروگرام میں جو ہے جگہ دیتے رہتے ہیں، اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ دیکھیں، کوئی سیکیورٹی لیبس نہیں ہے، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں ان کی گزرگاہیں ہیں، وہاں سے یہ ٹریول کر کر آتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں آ کر جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز پر یا عوام کے اوپر حملہ آور ہوں۔ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر آج اپنی پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے کہ ہمارے بہادر 42 جوانوں نے جو ہے ان دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ زیارت والا جو واقعہ ہوا اس میں ہمارے جو جوان شہید ہوئے وہ آخری گولی تک ان سے لڑتے رہے، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے فتنۃ الخوارج کا بھرپور مقابلہ کیا، جواں مردی سے مقابلہ کیا اور بہادری سے شہادت کو گلے لگایا۔ اسی طرح آج جو ہے لسبیلا میں بھی ہمارے فوج پاکستان کے جو جوان تھے وہ بہادری سے جو ہے ان فتنۃ الہندوستان سے لڑتے رہے اور اس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی لیبس آپ اسے نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک بات ہے کہ سہولت کاری کی، بالکل مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بلوچستان میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ بیرونی دشمن بابر، کے اس سے ساتھ پہلے ساتھ کہ میں جو ایک دوسرے اندرونی سوال کی دشمن ہے۔ طرف آؤں، ذرا میں بشریٰ سے معلوم کروں۔ بشریٰ، آج آپ نے ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس اٹینڈ کری، بابر یوسفزئی کہہ رہے تھے کہ چلے میں یہ پہاڑی علاقہ مجھے علم ہے، لیکن غالباً زیارت کا ارد گرد کا علاقہ جو ہے جہاں پولیس پر آئے وہ تو ایک طویل فاصلہ طے کر کے آئے ہوں گے۔ زیارت ویسے بھی لوگ تفریح وغیرہ کی ویسے بھی جاتے ہیں۔ میں سوری ٹو سے، اتنی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، سیکورٹی کا لفظ ایک ٹرم بن گیا ہے، تو ڈی آئی جی صاحب نے کیا توجیہ پیش کی کہ جو ایک تھانے پہ اتنی جو اغوا کر کے لے گئے، 10 کو شہید کیا گیا چوکی پہ، اور اس سے پہلے بھی وہاں واقع ہو چکے ہیں، کیا ڈی آئی جی صاحب کا موقف تھا؟ دیکھیں مجاہد صاحب، زیارت کا علاقہ ہے، اس کے حوالے سے ڈی آئی جی پولیس نے جو پریس کانفرنس کی ان کا کہنا تھا کہ سپی ڈویژن کا معاملہ ہے، کیونکہ وہاں جا کر ڈویژن میں کچھ تھوڑی سی چینجنگ آ جاتی ہے۔ لیکن اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو جس طرح سے بابر یوسفزئی صاحب نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں وہ حملہ کرتے ہیں، تو ہماری جو سیکیورٹی کے لوگ وہاں پر چیک پوسٹیں لگا کر بیٹھے ہیں، وہ کیا سب دن میں سیکیورٹی دے رہے ہیں، رات میں سیکیورٹی کوئی نہیں؟ جبکہ یہ پے در پہ ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے واقعات پیش ہوئے، بلکہ لگاتار جو واقعات پیش ہو رہے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہی ہو رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ جو علاقے کے لوگ ہیں، دن کے وقت تو اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی تحفظ مل جاتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جو علاقے ہیں ان ڈی کے آئی جی صاحب گھروں کا میں کیا چلے کہنا جاتے تھا؟ ہیں۔ وہ جو پولیس والے جو اغوا ہوئے تھے ان میں بھی کچھ واپس آئے ہیں، ان کو بھی کچھ ان میں شہید ہوئے ہیں؟ نہیں، اب تک جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جس طرح سے پریس کانفرنس نہیں، ہوئی اس میں انہوں نے 18 ڈی آئی جی نے جو کری ہے، ڈی آئی جی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی۔
देखिए डीआईजी पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने हन्ना उड़क के हवाले से जो है वो बात की कि हन्ना उड़क का जो इलाका था उसके हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उसके हवाले से उन्होंने बताया है कि पुलिस और एससी की जो चेक पोस्टें हैं वो मुश्तरका तौर पर अब कायम की जा रही है। लेकिन जो बात जहां तक रही मांगी डैम की, तो मांगी डैम के हवाले से मैंने आपको ये बताया कि ये जो है सिब्बी डिवीजन के इलाके में आता है। वहां उस हवाले से उनकी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो गैर मुसद्दिका इतलात हैं, जो लोगों की इलाके के लोगों की तरफ से इतलात हैं, अब तक कोई भी बंदा, कोई भी ऐसा मगवी जो है वो अब तक बाजियाब होकर नहीं आ सका है। जो 18 हैं, जो मगवियों में से 18 उनकी आज शहादत की इतला जो है वो पहले मौसूल होती रही, जिसका जो है अब ठीक उसकी है। तस्दीक जो है देखिए DCI जी जी बिशप बाबत से बात ये हो रही थी कि जो आप माशाल्लाह तजर्बेकार पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और आपको भी इल्म है कि कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग जो है वो फोर्सेस या पुलिस नहीं लड़ती जब तक कि उनके पीछे अवाम ना हो। और यहाँ आप लैप्स कर रहा है कि बजट के वक्त तो मैं देखता हूँ कि आपके जो अरकान असम्बली अपने एलोकेशन के लिए जनाब आप तो कहते हैं हमें ब्लू पासपोर्ट भी दो, हमें 2-2 करोड़ रुपए दो, 20-20 करोड़ इलाके के लिए पैसे दो। मुझे नहीं इल्म कि ये ज़्यादातर को तो मैं देखता हूँ बलूचिस्तान इस्लामाबाद में या सरीना होटल में। जब तक अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खुद उस इलाके का जो MPA MNA बेला के हों और जगह के हों, मैं तो अल्लाह का शुक्र मैं तो पूरा इस बेल्ट को भी देख चुका हूँ, इस बेल्ट को देखो यहाँ आप नहीं समझते कि इलेक्टेड नुमाइंदों को ये चाहिए, खाली उनको इसलिए लोग नहीं मुंतखब करते। खैर वो मुंतखब होते हैं वो एक अलग बात है कि वो बस फंड लें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लें, इस्लामाबाद के चक्कर लगाएं या चीन चले जाएं। तो यहाँ ज़रा सा सॉरी टू से ज़रा इस पर भी कंसीडर होना चाहिए ना बाबर। जी, रिजवी साहब, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ आपकी बात से। पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी होगी, अवाम के पास जाना होगा, अवाम को कॉन्फिडेंस देना होगा। देखिए, इस वक़्त वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है मीर सरफराज बुगटी, वो अवाम के साथ हैं। कल जब ज़ियारत में वाक़या पेश आया, तो बुशरा आप मेरी बात से जो एग्री करेंगी, सरफराज बुगटी साहब खुद बगैर प्रोटोकॉल के और बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के ज़ियारत गए। वो सारा दिन शुहदा के ख़ानदानों के साथ रहे। उन्होंने शुहदा के ख़ानदानों को ये यकीन दिलाया कि मैं आपसे हूँ और मेरा ये गम और तकलीफ़ भी इतना ही है, जितना ये गम और तकलीफ आपको है। तो वज़ीर आला साहब तो देखिए नहीं, अवाम में वज़ीर होते आला हैं, साहब देखिए, लेकिन वज़ीर दीगर आला साहब को तो नुमाइंदों का मैं भी ये फर्ज बनता है। बाबा देखिए, वज़ीर आला साहब की मैं इसलिए भी कदर करता हूँ, अभी नहीं, अकबर खां के मुकाबले में भी जब एक बार मैं कोयटा में था तो मुझे पता चला कि जी वो डेरा बुगटी से जीप में आ रहे हैं बगैर किसी सिक्योरिटी के। ये तो मैं 14 साल पुरानी बता रहा हूँ। उन्होंने उस वक्त सर्वाइव किया अकबर खान के बड़े सख्त दौर में। बात ये कि एक इस वक्त खाली वज़ीर आला तो ठीक है प्रोटोकॉल ही, बाकी MPAs जो है ये जो कितने 50 है 55 है इन इलाकों में, सेंसिटिव इलाकों में, इनको भी तो कहें कि जनाब आप अपनी कारकर्दगी तो बताइए, सिर्फ आप फंड मांगने में तो आगे आगे होते हैं। जी, ये अलमिया है। देखें, बिल्कुल ये जो है एक जिसे आप बोलें गैप नज़र आ रहा है। 65 का हाउस है हमारे पास। इसमें 53 अरकान जो हैं वो इलेक्ट होते हैं और 12 जो हैं वो रिज़र्व सीट्स के ऊपर आते हैं। बिल्कुल ये एक जो है ना हमें शिकायत मिल रही हैं कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अपने इलाकों में नहीं जाते। वज़ीर आला साहब फ्रंट से लीड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर वज़ीर आला साहब एक्शन लेंगे और आने वाले दिनों में जो मज़ीद नुमाइंदे हैं वो अपने इलाकों में जाएँगे और आवाम के दरमियान नज़र आएँगे। बल्कि अभी भी सॉरी टू से अभी मैं सुना खेतरान साहब को शायद किया है कि मुल्क से बाहर है वो। ये जो बुशरा जो आज जो DIG की कॉन्फ्रेंस है पे DISPR की है, इससे तो लगता है कि गालिबा आप माशाल्लाह काफ़ी अर्से से रिपोर्टिंग कर रही हैं, सूरत हाल मामूल से ज़्यादा संगीन लगती है ना बुशरा कमर। माजी में देखा कि जब वाकयात पेश आते थे तो 1 या 2 अफराद जो है वो रोजाना की बुनियाद पर कहीं पर भी टारगेट होते थे या किसी भी वाकये का निकलते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पे दर पे जो वाकयात पेश आ रहे हैं इसमें कैजुअलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा हैं। 8 से 10 अफराद जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर या हर गुजरते दिन के साथ जो है उनको मारा जाता है। तो वो हालात पहले की निस्बत अब ज्यादा संगीन हो चुके हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि पहले इतनी फोर्सेज नहीं थी, इतनी सिक्योरिटी जो नहीं थी, इतने चेक पॉइंट्स नहीं थे कि जहां पर चेकिंग की जाए। अब उसके मुकाबले में अगर देखा जाए जहां पर भी सिक्योरिटी की अगर सूरत हाल की बात करते हैं कि हमने चेक पोस्टें लगाई, तो उसके मुकाबले में वाकयात बहुत ज्यादा हो गए। हमने जो ये वाकया मांगी डैम में पेश आया तो जो इलाके के लोग हैं उनकी जानिब से यही कहा जाता रहा कि हमारे पास असला खत्म हो गया। क्या जरूरत नहीं है कि जदीद असला जो है उससे लेस किया जाए अपने अहलकारों को, ताकि सामने से आने वाला दुश्मन जितना भी असला लेकर आए, जितने भी जदीद असले से लेस हो, क्या हमारी फोर्सेस उसका
का मुकाबला नहीं कर सकती जब उनके पास वो असला, वो जदीद वेपन्स ही नहीं है। वक्त के साथ चीजें चेंज होती जा रही हैं, लेकिन हम अभी तक उस पुराने पैटर्न पे ठीक चल है रहे हैं। बुशरा, अभी तक लेकिन हम मैं उस एक पुराने बाबर तरीके एक और आपसे बात ये कहूँगा कि चाहे कितनी भी जंग हो, अब मैं तो खैर थोड़ा सा तारीख का तालिब इल्म रहा हूँ, बड़े बड़े आज देखिए ना, ईरान अमेरिका से एक दूसरे बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं हो सकता ना। मैं वो तो नहीं कहता नाराज़ बलोच और जो कुछ और भी कुछ हो रहा है, और वाकई अगर आप मुज़ाकरात या बातचीत के सब दरवाजे बंद करेंगे तो उन्हें बैठना ही पड़ेगा फिर काबुल में और हिंदुस्तान में क्या क्या। और वाकई एक एलिमेंट ऐसा जो नहीं चाहता होगा, लेकिन कुछ इस तरह लगता है। लेकिन मुझे इल्म है कि डॉक्टर मालिक बलोच के भी बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं बुक्टी साहब से, और इस तरह के और लोग भी हैं। मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई इस तरह का भी कोई इनिशिएटिव किया जाए। और आप सॉरी टू से, वैसे तो सभी खुददार होते हैं, मैं बरेलवी होते हुए, लेकिन बलोच और पश्तून ज़रा इस मामले में ज़रा खुददारी भी होती है। अगर आप उनको ज़्यादा वो हिट करेंगे तो फिर उसका रद्दमल भी ज़रा उसी ज़बान में आएगा ना। बाबर यूसुफ रही बरेलवी साहब देखें, ये जो है ना नेशनल इंटरेस्ट का एक मामला है, इसमें कोई हमारी अना या खुददारी नहीं है। जो शख्स बात करना चाहता है, जो शख्स पाकिस्तान के आईन को मानता है, पाकिस्तान के कानून को मानता है, उसके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बारहा ये कह चुके हैं कि जो शख्स पाकिस्तान के आईन और कानून को मानते हुए सरेंडर करेगा, हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहेगा, हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन हमें इस एलिमेंट को समझने की ज़रूरत है, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ हैं, ये जो फितनतुल ख़वारिज हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान लेकिन पहुँचाना चाहते बाबर हैं। कल ये मैं जब बलूचिस्तान के बाबर अमन को एक मिनट तबाह का लाइन करना सुनिए। चाहते हैं। बाबर अभी मैं जब बुशरा से कह रहा था, जब डॉक्टर महरंग को उम्र कैद की सजा दी गई तो उसके लिए तो पुरअमन हड़ताल हुई, किसी की नक्सीर भी नहीं फूटी। ये भी तो हुआ ना एक एफसी का एहलकार उन्होंने चले। तशद्दुद करके शहीद किया था। नहीं नहीं, ये शब्बीर मैं नहीं कह बलोच रहा, उसका नाम था, जिस दिन और उसी हड़ताल केस हुई में उस उन्हें दिन उम्र तो कैद पुरअमन मिली थी। रहा ना बलूचिस्तान। नहीं, पुरअमन नहीं रहा। इन्होंने जो है ना तोड़फोड़ की कोशिश की, इन्होंने बलूचिस्तान की सड़कों के ऊपर जो है ना टायर जलाने की कोशिश की। मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने इसकी साजिश को नाकाम बनाया। और मारंग लांगो को जिस केस में सजा हुई है, वो केस ये था कि उन्होंने एक नहीं, एफसी मैं के उस पर एहलकार बात को नहीं कर रहा, तशद्दुद करके मैं सिर्फ ये कह शहीद रहा किया था। था। मैं नहीं, ये जो सॉरी जो मैं तफसील में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा बाबर, फिर वहीं से गुफ्तगू करूंगा क्योंकि वक्त कम है, कि ठीक है बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी दुरुस्त के अफगानिस्तान और फरद और अस्करी माली, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि जो, और सॉरी टू से आपसे ये सवाल भी नहीं करना चाहिए, बुकरी साहब मैंने खुद करूँगा, कि जो पॉलिटिकल विल इलेक्टेड लोगों की होनी चाहिए। 2-2 साल 2.5 साल से जो लोग करोड़ों रुपए के फंड ले रहे हैं, पता नहीं अपने इलाकों में कितनी बार गए, हमें बताएं ना। बेला में कौन कब गया और मकरान गया और वो गया, हाँ हम बता देंगे कौन कितनी बार गया है, उसने कितना खर्चा किया है, कितना लोगों के साथ कचहरी की है। तो ये भी तो देना चाहिए ना इन लोगों को। सॉरी टू से सिर्फ आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे और बुकटी पे तमाम जिम्मेदारी डाल दी है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और हम सबको अपना हिस्सा इसमें डालना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के साथ-साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ-साथ, जितने भी लोग आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि करोड़ों रुपए के फंड्स लेकर जाते हैं, स्कीमात लेकर जाते हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है। उन्होंने पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हल्फ लिया है कि वो पाकिस्तान के और अपने इलाकों के नुमाइंदे हैं और उसकी हिफाज़त के ज़ामिन हैं, तो उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। और जो लोग ऐसा नहीं करते, मैं समझता हूँ कि उन्हें कोई हक नहीं है कि वो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करें। मुझे आखिर में जाना है, बल्कि थोड़ा सा बुशरा, ये भी मुझे इल्म है कि कुछ शहादतें होती हैं तो लोग एक एक महीने पहले पुरसे के लिए बैठे होते थे किसी की शहादत पर या कि इंतकाल पर। मैं जाता भी रहा हूँ खुद, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अपने दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए कि जिन्होंने बाबर साहब यकीनन एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी बड़े मुश्किल हालात में रिपोर्टिंग कर रही हैं, लेकिन सियासी तौर पर अगर पूरी पॉलिटिकल सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे नहीं हुआ तो ये लड़ाई जीतना इतना आसान नहीं होता। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कि ट्रंप साहब फिर उसी पर आ गए हैं, एक चार्ज माहौल में जहां इंतकाम इंतकाम के नारे लग रहे हैं, वहीं आज ट्रंप ने कहा है कि जंग बंदी ख़त्म हो जाएगी। देखना ये है कि सालसी करने वाले आपका क्या होगा। जी हाँ, आपने देखा कि एक ऐसे वक्त में एक चार्ज माहौल है, चार्ज जिसमें कि जहाँ लाखों, कोई के अंदाजे के मुताबिक 75 लाख, कोई कह रहा है 1 करोड़, जहाँ लोग इंतकाम इंतकाम बदला बदला का नारा लगा के अपनी लीडरशिप पर प्रेशर डाल रहे हैं। वहीं ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया कि जंग बंदी ख़त्म हो गई, और उन्होंने कहा आज ही हमने ईरान पर हमला किया है। साथ में जवाबी हमले भी हुए हैं। हमने
रहमत दी है जो डॉक्टर हुमा बकाई को। आप पता है कि अथॉरिटी का दर्जा रखती हैं ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स पर। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये जो एक मुज़ाकरात और मफ़ाहमत, और अभी कह रहे थे जी जुमेरात को मीटिंग, खैर इस वक्त तो खैर हमारे मोहसिन नकवी साहब यूनाइटेड नेशन मौजूद चले गए हैं, लेकिन ट्रंप का ये बयान और एक ऐसी तरफ एक चार्ज लगा हुआ है, तो ये किस तरफ इशारा करेगा डॉक्टर साहिबा? देखिए, इस वक्त एस्केलेशन तो हुई है, इस बात में तो कोई इबाम नहीं है, और अच्छी एस्केलेशन भी नहीं हुई, क्योंकि कम से कम तेहरान में इस वक्त जो कहते हैं ना कि इमोशनल टेम्परेचर्स वो बहुत हाई हैं, और ये जो सूरत हाल अब बनी 2 रोज़ में, इसमें तो हम यही कह सकते हैं कि ये 2 स्टेप बैकवर्ड है। क्योंकि इससे पहले तो बात ये हो रही थी कि फ्यूनरल के बाद 11 तारीख को दूसरी समझिए सेशन ऑफ कॉन्वर्सेशंस होगा या बातचीत होगा, और इस्लामाबाद का भी नाम आ रहा था उस हवाले से। तो अगर उस सूरत हाल को देखें तो डेफिनेटली एक सेटबैक आया, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी सख्त बातें की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जहां उन्होंने कहा MOU ख़त्म हो गया, जंग दोबारा शुरू हो गई, ईरान के लोगों के हवाले से भी उन्होंने 1-2 बातें कही, लेकिन उन साथ साथ उन्होंने एक जुमला कहा जो मैं समझती हूँ सबसे अहम है। उन्होंने कहा सालिसी चाहें तो अब भी बात कर सकते हैं, लेकिन मसला ये हुआ है कि ईरान ने कतर पे भी हमला किया है, और सऊदी अरब की तरफ से भी कदर सख्त स्टेटमेंट आया है ईरान के रवैये के हवाले से। तो देखिए, 2 बातें हो रही हैं, ईरान के अंदर भी माहौल बहुत चार्ज्ड है, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी इज़राइल और इज़राइली ज़ियोनिस्ट लॉबी अमेरिका के अंदर से अब उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। इस हद तक कि जो इज़राइली कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये मेमो ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और अब तो वो कह रहे हैं कि ये फ़ाल ही नहीं रहा। तो मैं समझती हूँ थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट अमेरिका की तरफ से और स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट ईरान की तरफ से भी आने की ज़रूरत है, ताकि प्रोसेस डीरेल ना हो। 4 महीने की जंग के बाद सबको पता चल गया है कि जंग ऑप्शन नहीं है, और इसके नतीजे में सिर्फ फरीक़ैन को तकलीफ़ नहीं होती, पूरी दुनिया को माशी तकलीफ़ होती है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी इंच अप करना शुरू हो गई हैं। बस मेरा ख्याल है कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कोई बेहतरी ही निकलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो है ना कि जो यानी बड़े उन्होंने ट्रंप साहब ने जहाँ ये कहा कि आज मैंने हमला किया है, और ईरान का भी सॉरी टू से कि एक सिंपैथी रखने के बावजूद आखिर और बहरीन पर, कुवैत पर, सऊदी अरब पर हमला करके, अभी तो सऊदी तो नुमाइंदा भी गया था उनकी ये तो सॉरी टू टेक खलीज की रियासतों से बदला ले रहे हैं ना, इसमें इसराइल और अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो ये इस ईरान की जो फैसला साज लोग हैं उनके इस इक़दाम पर सवाल तो उठेगा ना। जी, मैंने आपसे कहा कि सूरत हाल गंभीर है, और देखिए कि सऊदी अरब भी तेहरान से में उनका डेलीगेशन था टू पे रिस्पेक्ट्स टू अल ख़ामेनी। 77 ममालिक के लोग वहाँ मौजूद थे। कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में इससे बड़ा फ्यूनरल प्रोसेशन कभी हुआ नहीं, और कई जगह हुआ, ये भी अभी भी जारी है। लेकिन ये भी ख़बरें आ रही हैं कि जो इरानियन प्रेसिडेंट हैं वो अपना विज़िट कट शॉर्ट कर वापस तेहरान आ गए। तो ये बात तो तय है कि फ़िक्र मौजूद है ईरान में भी, और ज़ाहिर है कि एक अमेरिका में समझिए एक फ्रस्ट्रेशन है। जो मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप की बात नज़र आई उसमें फ्रस्ट्रेशन थी। कल तक वो कह रहे थे ईरान से अच्छी बात हो रही है, आज वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। और मुझे और आपको जहन में रखना चाहिए कि स्पॉइलर तो अपनी जगह मौजूद है ना। कौन सा मुल्क चाहता है जो कि ये टॉक्स ना हो, जंग ना रुके? वो इज़राइल है। उसने लेबनान को भी अटकाया हुआ है, उसने गज़ा में भी हमले जारी रखे हुए, और जाहिर है कि उसने एक ज़ियोनिस्ट लॉबी से प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी शदीद तरीन प्रेशर जनरेट किया हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर ईरान जो है वो कोई मिसस्टेप लेता है तो फिर जाहिर है उसका रिएक्शन सख्त आएगा अमेरिका की तरफ से। अब हो गया, इन्होंने भी मार दिया, उन्होंने भी मार दिया, और इन्होंने कतर को भी मारा, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि कतर जो है वो तो मीडिएशन का किरदार भी अदा कर रहा था। सो आई एम होपिंग कि कोई ये ना सैनिटी विल प्रिवेल, टेम्परेचर्स नीचे होंगे और पीस प्रोसेस वापस डगर पर आएगा।
ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑی سی حیرت ہی مجھے ہو رہی ہے کہ جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے پاکستان، جس کی شریف حکومت، خاص طور پر ان کے منسٹر داخلہ نقوی صاحب دلچسپی لے رہے تھے اور کریڈٹ لے رہے تھے اور دارالتحسین وصول کر رہے تھے، ایوارڈ کے لیے نامزد کر رہے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اسی ہفتے مذاکرات ہوں گے، وہ تو یونائٹڈ نیشن کے دورے پہ چلے گئے، اور باقی بھی جو اس اتنے بڑے کردار کے بعد ایک کچھ غیر سنجیدگی کا ہی نظر آئی۔ شریف صاحب کا بھی شاید قیام 12 گھنٹے بھی نہیں رہا اور ترکی چلے گئے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہمارا فورن آفس کو یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہو رہا ہے ڈاکٹر۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسے بہت سارے اعلان جنگ کر چکے ہیں، وہ سویلائزیشن بھی تباہ کہنے کے بارے میں بات کر چکے ہیں، وہ فیونرل کو بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک بٹن دبا کے سب کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے لوگوں کا فیونرل پہ آنے سے وہ سرپرائزڈ ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی سپورٹ ہے اس آدمی کے لیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو ممالک شریک ہوئے ان میں سے کچھ ممالک کو ایڈوائزری بھی گئی تھی کہ وہ نہ جائیں تہران، اس کے باوجود ان ممالک نے سمجھیے وہاں شرکت کی۔ جو ترکیہ میں ہو رہا ہے نیٹو کا سمٹ، اس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹون ناراض ہی ہے، اور انہوں نے جو ترکیہ کو وعدہ کیا ہے جہاز دینے کا، اس سے بھی اسرائیل ناراض ہے، کیونکہ اسرائیل کی جو سپرمیسی ہے ویسٹ ایشیا میں، وہ اس پر کوئی سوال، کوئی چیلنج نہیں چاہتا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ذرا اس پہ ذرا سا شاید گریز ہوا ہے، کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ثالثی کا کردار ادا کرنے والوں کا بھی بہت کچھ غیر متعلق نظر آ رہا ہے، لیکن لاسٹ میں آپ سے معلوم کروں گا کہ جو اہم بات آپ یہ نہیں سمجھتی کہ جو فیونرل ہے اس میں انتقام بدلہ سرخ جھنڈے لیے جو لوگ نکلے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ ایرانی لیڈرشپ پہ پریشرائز کر رہیں گے نا، کہ آپ جو ہے کہ آیت اللہ کی شہادت ہو گئی، اتنے لوگ مارے گئے، بچے بچیاں، اور آپ ایک میز پر بیٹھنے جا رہے ہیں یا مذاکرات کر رہے ہیں یا دستخط کر رہے ہیں۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ ایک بہت طاقتور فیکشن ایران میں بھی ایسا موجود ہے جو شاید یہ چاہتا ہی نہیں کہ بات چیت ہو، وہ چاہتا ہی نہیں کہ اپیزمنٹ ہو، لیکن جو وہاں کی سیاسی جو ان کا عسکری ونگ ہے، جو وہاں کی سیاسی قیادت ہے، وہ محنت کر کے اس صورتحال کو یہاں تک لائی ہے کہ ایران کو تیل بیچنے کی اجازت مل گئی تھی، بلاکٹ ختم ہو گیا تھا، میزائل پروگرام ایکسیپٹ ہو گیا تھا، اور ایسڈز ریلیز کی بات ہو رہی تھی۔ یہ بہت بڑے ونز ہیں ایران کے لیے، لیکن ایران کو بھی اپنی انٹرنل لوگوں کو اپیز کرنا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ایران کو 100 دن میں یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر وہ پریشر نہیں رکھتا اپنا یو ایس کے اوپر، یا اپنی ریٹیلیشن کیپیسٹی کو کے حوالے سے باور نہیں کراتا یو ایس اور اسرائیل کو، تو پھر یہ کانورسیشنز ایسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو جو آپ ایران کے سخت جملے اور سخت جواب دیکھتے ہیں، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایرانین اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔